क्लासिफिकेशन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कि we can classify it into the primary, secondary and the hereditary glomerulopathies. Beside their classification, we can classify them according to the syndrome or clinical presentation as well. And that classification included the nephrotic syndrome, glomerulonephritis, which results into the nephrotic, and others which are resulting into the nephritic syndrome. The third group was combined presentation of the nephrotic and the nephritic syndrome. तो आज के लेक्चर में हम nephrotic nephritic syndrome को देखते हैं क्या है. We have the different structures within the kidney. Either there is involvement of the glomeruli, which results into the glomerulonephritis. If there is involvement of the tubules and the interstitium, this leads to the pyelonephritis and the blood vessel diseases, which are mostly the systemic vascular diseases, just like arteriosclerosis. तो ये broadly हम different जो है histological grounds पर diseases को classify कर सकते हैं जो कि kidney को involve करते हैं. Now the glomerular diseases, they can give rise to different clinical syndromes. And these are the renal clinical syndromes, which can be is partial renal failure and the total renal failure. Now, what is this partial renal failure and the total renal failure? We see in partial we have the nephrotic and nephritic syndrome. In the complete renal failure or the total renal failure, we can classify it in the acute and the chronic one. So first we are going for the nephrotic and the nephritic syndromes, which are the part of the partial renal failure. Nephrotic syndrome. This is a kidney disorder that is affecting the body to pass too much protein in the urine. Because of there is excessive loss of the protein resulting into the proteinuria. That is the main feature of the nephrotic syndrome. Usually caused by different damages and affecting the small blood vessels, which are the capillaries within the glomeruli. So within the glomeruli, these small capillaries, they are mainly targeted, they are mainly damaged, resulting into the increased permeability to the proteins. And main protein content here, it is the albumin. So there is loss of the albumin, resulting into the proteinuria and hypoalbuminemia. And constantly, when there is loss of the protein in the urine, the serum protein content, serum albumin content, that is decreased. So we call it hypoalbuminemia. तो किडनी में जो वेसल्स हैं, उन वेसल्स में डैमेज हो रहा है और यहाँ पर permeability increase हो जाती है. There is increased loss of the proteins, and this loss is selective loss of the proteins. So this selective loss leads to the albumin loss of albumin. So what is the definition of this nephrotic syndrome? We can define it as nephrotic syndrome is characterized by heavy proteinuria. Now, this heavy is very important because a small loss of the protein do occur in the nephritic as well. In the nephritic syndrome, we see there is loss of the protein, but that is not the heavy protein loss. वहाँ पर heavy protein loss नहीं होता है. यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें heavy proteinuria मिलती है, and this heavy proteinuria is defined as if there is loss of more than 3.5 grams per 24 hours, then we call it heavy proteinuria. अब ये 24 hours में more than 3.5 grams कैसे पता चलेगा? 24 hours में 24 hours यूरिन कलेक्ट करते हैं, यूरिनरी बैग लगाते हैं, कैथेटराइज करते हैं पेशेंट को, और 24 hours यूरिन हम कलेक्ट करते हैं और फिर 24 hour यूरिन हम उसको हम चेक करवाते हैं. उसमें हमें पता चलता है कि more than, if it is crossing more than 3.5 grams per 24 hours, then we call it a heavy proteinuria, which is one of the very characteristic, very important feature of the nephrotic syndrome. And that is also the definition of the nephrotic syndrome. But this is not at the end. कुछ और features भी हैं. Hypoalbuminemia. What is this hypoalbuminemia? There is decreased albumin within the serum. तो सीरम में ब्लड में एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज हो जाती है और वो कितनी हो जाती है? दिस इज लेस देन 2.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर.
तो डेफिनेशन और चलती है, देयर इज जनरलाइज्ड edema, there is hyperlipidemia, lipiduria. So all these, they are the characteristic features of the nephrotic syndrome. They completely defines nephrotic syndrome. So whenever you are asked about the definition of the nephrotic, so you must say it's a disease which is a syndrome, renal syndrome, which is characterized by all these features. अब सबकी पैथोजेनेसिस है कि प्रोटीनूरिया क्यों हो रही है, प्रोटीनूरिया होने के बाद हाइपोलिपिडीमिया कैसे हुई, जनरलाइज्ड एडिमा कैसे हुई, हाइपरलिपिडीमिया कैसे हुई और लिपिड्यूरिया कैसे हुई। तो ये पैथोजेनेसिस में हम सारे फीचर्स देखेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे होता है। We say there is heavy proteinuria, प्रोटीन लॉस क्यों हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा, अब क्यों हो रहा है, what has convinced the more loss of the albumin or the protein within the urine, ये हम देखेंगे पैथोजेनेसिस में। ऐसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्यों है, जैसे हमने अभी देखा है लास्ट लेक्चर्स में कि this can be because of the various types of the glomerulopathies, and few they are the primary, few they are the secondary। तो जो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस हैं, प्राइमरी ग्लोमेरुलर नेफ्रोसिस हैं, नेफ्रोपैथीज हैं, they can lead to the nephrotic syndrome. Similarly, there are certain secondary glomerulopathies which are glomerulonephritis, they may lead to the nephrotic syndrome. So primary glomerulopathies as well as certain secondary both can lead to the nephrotic syndrome. Now, what are the primary ones? Minimal change disease on the top. This is the glomerulonephritis, which is the most common cause of the nephrotic syndrome in children. Adults में हम देखते हैं तो focal segmental glomerulosclerosis है और ये भी nephrotic syndrome करवाता है, and this is a common cause in the adults. So nephrotic syndrome can be because of primary glomerulonephritis. In primary में children में most common ये cause हो गया, adults में most common focal segmental हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर द BCQs। ये BCQs में कॉमन पूछी जाती है व्हाट आर द कॉमन प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और एज ग्रुप अगर पेशेंट का बता दिया जाता है कि कोई एडल्ट एज ग्रुप में, कोई चिल्ड्रन में, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ और प्राइमरी हैं जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लीड करती हैं, उनमें हम देखते हैं मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव है और क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो ये तीनों अलग ग्लोमेरुलोपैथीज हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैं जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा सकती हैं। ये पांच की पांच डिजीजेस सारी की सारी क्या हैं, प्राइमरी हैं। All they are the primary glomerulonephritis which can be one of the etiological factor for the nephrotic syndrome। उसके बाद हम देखते हैं कुछ सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी सिस्टमिक है, डायबिटीज इज ऑन द टॉप which can lead to the nephrotic, excess blood sugar accumulates in the kidney leading to inflammation and ultimately normal function जो है वो alter हो जाता है and there is loss of the protein in the urine। तो एक्सेस शुगर लॉस के साथ साथ प्रोटीन लॉस होना भी शुरू हो जाएगा और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लीड करेगा बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। सेकंड है अमाइलोइडोसिस, उसके बाद SLE है। SLE भी किडनी के अलावा मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है बिकॉज ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, वेसल्स दे आर द प्राइमरी ऑर्गन, मेन ऑर्गन इन द SLE। उसके बाद वेस्कुलाइटिस के साथ साथ और ऑर्गन्स को भी टारगेट करते हैं और ये जाके किडनी को भी टारगेट करती हैं और ग्लोमेरुलोपैथीज करवाते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ड्रग्स हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं, मैलिग्नेंसीज हैं, मिसलेनियस कॉजेस हैं। These all can be the factors which are the secondary causes of the nephrotic syndrome। तो ड्रग्स में पेनिसिलिन आ जाता है, इन्फेक्शंस में कुछ जो है वायरल कॉजेस भी हैं, पैरासाइटिक कॉजेस भी हैं जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा रहे हैं। मैलिग्नेंसीज में स्किन मैलिग्नेंसीज, मेलानोमा, इन सम एपिथेलियल कैंसर्स हैं जो मैलिग्नेंट एपिथेलियल कैंसर हैं जिनके साथ हम कार्सिनोमा लगाते हैं, वो लीड कर सकते हैं नेफ्रोटिक को। मेलानोमा स्किन का आ गया और मिसलिनियस में एलर्जिक, हेरिडिटरी एंड दीस थिंग्स दे कैन ऑल बी द कॉजेस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गए किसके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, जिसमें हमने दो तरह के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। फ्यू दे आर प्राइमरी, फ्यू दे आर द
सेकेंडरी, प्राइमरी में प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाते हैं, सेकेंडरी में सेकेंडरी कॉजेस आ जाते हैं, और कुछ इस तरह से ड्रग्स और इन्फेक्शंस, कैंसर्स, मैलिग्नेंसीज और उसके साथ साथ मिसलेनियस कॉजेस आ जाते हैं जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मेन फीचर क्या है, जो कि डेफिनेशन बनाते हैं उसमें प्रोटीनूरिया, हाइपोअल्ब्यूमिनिया, उसके बाद जो है बाकी फीचर्स आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पैथोजेनेसिस पर। ये सारे फीचर्स जो हैं वो देखे हैं। ग्लोमेरुलर दे आर द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसमें बहुत ज्यादा कैपिलरीज मौजूद हैं। नॉर्मली दीस कैपिलरीज दे आर नॉट परमेबल टू द प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन यहां से लीक आउट नहीं हो सकते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 40 के डेल्टन से कम होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो है कैपिलरी मेम्ब्रेन से, कैपिलरी से जो है क्रॉस कर सकते हैं। कैपिलरी में हमने देखा था क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं। पोडोसाइट्स ऊपर हैं एपिथेलियल सेल्स की तरफ है, जो कि विसरल और पेराइटल एपिथेलियल सेल्स हैं उनके साथ होते हैं, और एक मेसेंजर सेल और मेसेंजर मैट्रिक्स। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लोमेरुलाई। तो ग्लोमेरुलाई के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, जो ब्लड वेसल्स हैं, बात हो रही है ब्लड वेसल की कि यहाँ से प्रोटीन को लीक आउट करवाना है, जो कि हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोजेनेसिस है। तो ये इम्पर्मिएबल होती है फॉर द प्रोटीन्स, स्पेशली द एल्ब्यूमिन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज इंक्रीज्ड permeability of the basement membrane to these proteins. अब ये permeability कैसे बढ़ती है, and this permeability, increased permeability allows the loss of the proteins, especially the albumin. तो ये permeability increase होगी, और permeability increase कैसे होगी, सबसे पहले we see in different types of the glomerulopathies, glomerulonephritis में हमने देखा था क्या होता है, एक फीचर होता है थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये थिकनिंग इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकती है, जिस तरह से हमने देखा कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आते हैं वो जीबीएम पर आकर अटैच हो जाते हैं। इनसाइड टू इम्यून कॉम्प्लेक्सेस भी बन सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी आए और वहां पर आकर जीबीएम पर आकर अटैच हो गए। जीबीएम के अपने एंटीजेंस हैं, उनके साथ क्रॉस रिएक्ट कर सकती हैं एंटीबॉडीज, और वो आकर वहां पर जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। सो ऑल दिस इज इम्यूनोलॉजिकल, इसकी हम सारी डिटेल कर चुके हैं। तो ये जो जीबीएम की थिकनिंग हो रही है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो वेसल्स के साथ, एंडोथेलियल सेल्स के साथ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनिंग हो जाती है। ये थिकनिंग क्या करती है, नॉर्मली दिस इज नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन, और ये जो एल्ब्यूमिन पार्टिकल्स हैं, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हैं, ये क्या है, ये भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है और ये यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब ये जो जीबीएम की थिकनिंग हो जाती है, इसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लॉस हो जाता है, इसका जीबीएम का नेगेटिव चार्ज लॉस हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये इजी पैसेज देते हैं, एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द इंक्रीज्ड परमेबिलिटी लीडिंग टू द लॉस ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है कि किस तरह से यहाँ से जो है ये पॉलीएनाइन बैरियर जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज बैरियर है ये खत्म हो जाता है, और इस बैरियर को, पॉलीएनाइन बैरियर को खत्म होने की वजह से यहाँ से देयर इज इंक्रीज लॉस ऑफ द प्रोटीन्स एंड एल्ब्यूमिन लीडिंग टू द proteinuria, and this proteinuria is heavy proteinuria. This is more than 3.5 grams per 24 hours. अच्छा, ये होगी क्या, हेवी प्रोटीनयूरिया। यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो थिकेंड एरिया, कौन सा कलर है ये, पिंक कलर का, तो ये जो थिकेंड एरिया है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन को। वैसे ये यहाँ पर ये फोकल सेगमेंटल की पिक्चर दिखाई गई है कि एक सेगमेंट दिखाया गया है ग्लोमेरुलस का, जिसमें जो है फोकल इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई है। तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जो है वेसल को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर आप इजीली इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को ट्रेस कर सकते हैं कि यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो गई। अच्छा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो गई, पॉलीएनाइन गैप खत्म हुआ, नेगेटिव चार्ज डिफरेंस खत्म हुआ, अब ये एल्ब्यूमिन लॉस होना शुरू हो जाएगा। और ये एल्ब्यूमिन लॉस जब होगा तो ये लीड करेगा, इससे लीड नहीं करेगा, ये क्या होगा, दिस इज द फीचर टर्म्ड एज प्रोटीनयूरिया।
ये प्रोटीन यूरिया अल्टीमेटली क्या कराएगा, सीरम में प्रोटीन कंटेंट कम हो जाएगा। प्रोटीन लॉस जो है कहां से हो रहा है, ब्लड से हो रहा है। ब्लड में प्रोटीन कम हो जाएगा, ब्लड में एल्ब्यूमिन कम होगा तो इस फीचर को हम क्या कहेंगे, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया या हाइपोप्रोटीनीमिया। दिस हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन यूरिया, loss of protein within the urine. Loss of protein within the urine leads to the hypoalbuminemia. अब ये जो एल्ब्यूमिन है इसका काम क्या है, ब्लड के अंदर कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड वेसल के अंदर क्या काम करता है, फ्लूइड को रिटेन करता है, वेसल के अंदर फ्लूइड को रिटेन करता है। जो दो प्रेशर होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर भेजता है, वेसल के अंदर जो फ्लूइड है उसको बाहर भेज रहा होता है, लेकिन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, फ्लूइड को अंदर रिटेन करता है, वो उसको रिटेन करता है। अब क्या हुआ है कि प्रोटीन यूरिया हुई है, प्रोटीन यूरिया की वजह से हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हुआ, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हुआ है, एल्ब्यूमिन कम हो गए हैं, प्रोटीन कंटेंट कम हो गए हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, जो फ्लूइड को रिटेन करने की फोर्स थी वो कम हो जाएगी, फ्लूइड को रिटेन करने की जो प्रेशर था वो कम होगा, फ्लूइड को रिटेन करने का प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड क्या करेगा, लीक आउट करेगा। फ्लूइड लीक आउट करेगा तो क्या फीचर आ जाएगा, एडिमा का फीचर आ जाएगा। नाउ दिस feature can be generalized edema. This can be generalized edema. This is not only affecting the specific parts but can be generalized. तो एब्डोमेन में भी हो सकता है, मींस पेरिटोनियल कैविटी में भी हो सकता है, बेडल एडिमा भी हो सकती है, पेरिऑर्बिटल एडिमा फेस पर भी हो सकती है, जो जनरलाइज्ड एडिमा होगी इन पेशेंट्स में जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आ रहे हैं। किसके साथ आ रहे हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ है। क्लिनिकल फीचर्स भी हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और फीचर आ रहा है, इन फीचर्स जो कि डेफिनेशन में है, क्या है, देयर इज प्रोटीन यूरिया, देन हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, देन देयर इज एडिमा। तो ये एक की वजह से दूसरा, दूसरी की वजह से तीसरा फीचर आ गया। अब क्या इफेक्ट आ रहा है, देयर इज हाइपरलिपिडीमिया, देयर इज इंक्रीज कंटेंट ऑफ द लिपिड्स विदिन द ब्लड, विदिन द सीरम। तो ये क्यों हो रहा है, दैट इज इंक्रीज हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। प्रोटीन कंटेंट कम हुआ है तो लिवर क्या करेगा, कंपनसेशन करेगा। कंपनसेशन करने के चक्कर में क्या बनाएगा, लाइपोप्रोटीन्स को ज्यादा बनाएगा। लाइपोप्रोटीन्स ज्यादा बनाएगा तो ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं ये क्या करवाएंगे, दैट इज इंक्रीज लिपिड्स विदिन द blood, within the serum. So this results into the hyperlipidemia. This results into the hyperlipidemia. Now this is secondary to the hypoalbuminemia. तो hypoalbuminemia हुई, hypoalbuminemia की वजह से एक तरफ एडिमा हुई, दूसरी तरफ hyperlipidemia हुई। अब hyperlipidemia हुई है मींस लिपिड कंटेंट भी बढ़ गया है सीरम के अंदर। जब बढ़ गया है तो वो एक्सक्रीट भी ज्यादा होगा। नॉर्मली एक्सक्रीट कम हो रहा होगा, इससे ज्यादा होगा। अब जब एक्सक्रीट होना शुरू करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, देयर इज लिपिड यूरिया। तो ये सारे पांचों फीचर्स आ जाएंगे किसके, जो कि कैरेक्टराइज करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई, क्लिनिकल फीचर्स भी हो गए, पैथोजेनेसिस भी हो गए कि क्या पैथोजेनेसिस है, किस तरह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया हो रही है, वो परमेबिलिटी की वजह से हो रही है। परमेबिलिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ द जीबीएम थिकनिंग। जीबीएम थिकनिंग विल लीड्स टू द लॉस ऑफ द पोलिएनाइन गैप। पोलिएनाइन गैप जो खत्म हुआ है, नेगेटिव चार्ज खत्म हुई है, अब ये एल्ब्यूमिन बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। एल्ब्यूमिन बाहर जाएगा तो सीरम एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, सीरम एल्ब्यूमिन कम हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो जनरलाइज्ड एडिमा हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से लिवर लाइपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस बढ़ा देगा, लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी तो हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगी। हाइपरलिपिडीमिया जब होगी, लिपिड कंटेंट बढ़ेगा तो लिपिड एक्सक्रीट भी होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लिपिडीमिया कहेंगे। दिस इज ऑल द पैथोजेनेसिस डेफिनेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इन पेशेंट्स को हम देखते हैं तो इनको क्या नजर आती है, पेरीऑर्बिटल एडिमा नजर आती है, पफिनेस अराउंड द आईज। ये क्यों हो रही है,
एडिमा बिकॉज ऑफ द जनरलाइज्ड एडिमा। जो जनरलाइज्ड एडिमा हमने कही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से एडिमा होगी, वो कहां पर नजर आ रही होगी? अराउंड द आई, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पांव पर हम देखेंगे तो क्या नजर आएगी? पिटिंग एडिमा, पेडल एडिमा आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ अगर पेरिटोनियल कैविटी में हम देखेंगे तो अस्साइटिस नजर आएगी। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड एडिमा है जो कि इन सारे फीचर्स के साथ पेशेंट को प्रेजेंट करेगी। सो पफिनेस दिस इज अराउंड द आईज, मोर प्रोनाउंस्ड एट द मॉर्निंग टाइम। पिटिंग एडिमा होगी इन द लेग्स। प्लूरल एफ्यूजन, लंग में एडिमा होगी तो दिस विल लीड टू द प्लूरल एफ्यूजन। यही एडिमा लंग में हो रही है तो प्लूरल एफ्यूजन। व्हाट इज दिस प्लूरल एफ्यूजन? Collection of fluid where? Pleural cavity में। So pleural जो membranes हैं and lung parenchyma उनके बीच वाली जो स्पेस है, इस स्पेस में fluid accumulate हो जाएगा और इस स्पेस में अगर fluid accumulate होगा we call it pleural effusion। इसी तरीके से ascites हो जाएगी, this is collection of fluid where? Abdominal cavity into the peritoneal cavity, within the peritoneal cavity। उसके साथ साथ hypertension, anemia, dyspnea, ये सर्विस, एनोरेक्सिया, फैटिग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नॉन स्पेसिफिक फीचर्स भी हैं इसमें। तो ये सारे मिलके क्लिनिकल फीचर्स बनाएंगे किसके? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? हाइपरकोगुलेबिलिटी हो सकती है। कैसे हो सकती है हाइपरकोगुलेबिलिटी? दिस विल लीड्स टू द थ्रोम्बोसिस एंड देयर आर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। ठीक है, ये डीवीटीज क्या करवा सकती हैं? यहाँ से इम्बोलाई बन सकते हैं। ये इम्बोलाई बनेंगे तो कहाँ जाएंगे? पल्मोनरी वेनस सिस्टम में जाएंगे। तो यही इम्बोलाई पल्मोनरी वेनस सिस्टम के साथ साथ रीनल वेन थ्रोम्बोसिस भी करवा सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द हाइपरकोगुलेबिलिटी। ये कैसे हो रही है हाइपरकोगुलेबिलिटी? जी सर, ये कैसे हो रही है? हाँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हाइपरकोगुलेबिलिटी कैसे हो रही है? दैट इज डिक्रीज लेवल ऑफ द एल्ब्यूमिन। ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि प्रोटीन यूरिया हो रही है। प्रोटीन यूरिया की वजह से एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है। एल्ब्यूमिन लॉस की वजह से हमें क्या कहा है? देयर इज डिक्रीज एल्ब्यूमिन विद इन द ब्लड, वी कॉल इट hypoalbuminemia। hypoalbuminemia, this leads to the increased synthesis of the fibrinogen by the liver। एक तरफ हमने क्या बनाया था? लाइपोप्रोटीन्स बनवाए थे। लिवर से क्या करवाया था? कंपनसेटरी लाइपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही थी। वो भी क्यों हो रही थी? Because of the loss of the albumin, because of the hypoalbuminemia, blood में albumin कम हुआ था तो लिवर ने कंपनसेशन शुरू कर दी थी। लिवर ने अपना काम जो सिंथेटिक फंक्शंस हैं वो ज्यादा एक्टिवली करना शुरू कर दिए थे। तो उसमें हमने देखा लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? That is increased synthesis of the fibrinogen। Now, beside that, there is loss of the antithrombin 3 protein within the urine। This is another protein beside albumin। There is loss of this protein as well, which is antithrombin 3। तो एक तरफ ये हो गया increased synthesis of fibrinogen, दूसरी तरफ ये कोगुलेंट है antithrombin 3, ये एंटीकोगुलेंट है। ये दोनों इफेक्ट मिलकर क्या करेंगे? हाइपरकोगुलेबिलिटी करेंगे। हाइपरकोगुलेबिलिटी इटसेल्फ क्या करवाएगा? थ्रोम्बोसिस स्टार्ट करवा देगा। तो ये मींस एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें इंटररिलेटेड एक्शंस हो रहे हैं विद द लॉस ऑफ द प्रोटीन। और लॉस ऑफ प्रोटीन हमने रिपीटेडली मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ग्लोमेरुलोपैथीज। दे मे बी प्राइमरी, दे मे बी सेकेंडरी। प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। जीबीएम की थिकनिंग, पोलिनाइन गेट लॉस, वो सारा कुछ। अब एक और फीचर क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एल्ब्यूमिन व्हिच इज प्रिवेंटिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है कौन? एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन खुद नहीं है, एल्ब्यूमिन खुद नहीं है तो क्या होगा? देयर इज मोर एंड मोर प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो क्लॉटिंग ज्यादा एनहांस हो जाएगी, कोगुलेशन ज्यादा एनहांस हो जाएगी। तो तीन फीचर आ रहे हैं। एक तरफ फिब्रिनोजन की सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, दूसरी तरफ एंटीथ्रोम्बिन 3 की लॉस हो रहा है, यूरिनरी लॉस हो रहा है। तीसरी तरफ हमने देखा एल्ब्यूमिन कम है तो उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन एनहांस हो रही है। दिस इज एक्टिवेटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन। दूसरा फीचर, दूसरा कॉम्प्लिकेशन वो क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। दिस इज बिकॉज ऑफ द
हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया कि कैसे हो रही है, और ये हाइपरलिपिडीमिया क्या करवाएगी? एथेरोस्क्लेरोसिस करवाएगी। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करवा सकती है? दिस कैन रिजल्ट इनटू द coronary artery diseases and ultimately leading to the myocardial infarction। अब बात कहां से शुरू हुई थी? मिनिमल चेंज डिजीज से। कहां से शुरू हुई थी? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस से, डायबिटीज से, एसएलई से। अब कॉम्प्लिकेशन आप कहां तक लेकर जा रहे हैं उसको? एमआई तक। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इंफेक्शंस, दिस मे बी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये कैसे लॉस हुए? प्रोटीन्स तो हैं, लेकिन ज्यादा ये कंज्यूम हो जाते हैं जीबीएम थिकनिंग में। एंटीबॉडी ज्यादा कंज्यूम हो जाती हैं जीबीएम थिकनिंग में। जीबीएम थिकनिंग में हमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, और इसी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम हो जाती हैं। तो पेरिटोनाइटिस, असाइटिस, ये सारे फीचर्स यहाँ पर हो सकते हैं, और दीज दे आर द कॉम्प्लिकेशंस। कैसे डायग्नोस करेंगे इसको? यूरिन टेस्ट करेंगे, तो हमें हेवी प्रोटीन यूरिया मिलनी चाहिए। दिस शुड बी मोर देन 3.5 ग्राम्स पर 24 आवर पर डे। कैसे करेंगे? 24 आवर यूरिन कलेक्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि देयर इज लॉस ऑफ द प्रोटीन व्हिच इज मोर देन 3.5 ग्राम्स। 3.5 ग्राम्स। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो सीरम एल्बुमिन कम मिलेगा, और कितना कम मिलेगा? इट शुड बी लेस देन 2.5। इसमें ये फिगर याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक ऑन दीज नंबर्स। इन्हीं नंबर्स पर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बहुत दफा हम हेवी प्रोटीन यूरिया या प्रोटीन यूरिया याद कर लेते हैं, सिंपली हम डेफिनेशन बताते हुए एग्जामिनर को क्या कहते हैं? प्रोटीन यूरिया होती है। तो एग्जामिनर फौरन से कहता है प्रोटीन यूरिया, तो नेफ्राइटिक में भी हो रही है। हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द टू प्रोटीन यूरिया? तो वो पहले से वो जो आप जो लफ्ज यूज करते हैं ना, जो टर्म यूज करते हैं, उसी से पता चल रहा होता है कि आपकी डेफिनेशन कितनी पक्की है ना, कितना आपका पैथोजेनेसिस पता है, और कितना आपको उस पर जो है ना ग्रिप है। तो प्रोटीन यूरिया इटसेल्फ नॉन एक्सप्लेनेटरी वर्ड है यहाँ पर नेफ्रोटिक में। यहाँ पर हमें पूरा लफ्ज आना चाहिए, दिस इज हेवी प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे। इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड्स बढ़ जाएंगे, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या होगा? किडनी फंक्शन। हमने क्या कहा है यहाँ पर? नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम बोथ आर लीडिंग टुवर्ड्स द पार्शियल रीनल फेलियर। दे आर कॉजिंग द पहले जो स्लाइड शुरू में मैंने दिखाई कि हमने पार्शियल और टोटल रीनल फेलियर को क्लासिफाई किया। पार्शियल में नेफ्रोटिक भी आ जाता है, नेफ्राइटिक भी आ जाता है, और टोटल में एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। तो यूरिया क्रिएटिनिन जो है ये भी हमें जज कर सकते हैं, इससे हमें पार्शियल रीनल फेलियर पता चलेगा कि जो है BUN कैसे है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कैसे है, यूरिया क्रिएटिनिन कैसी है लेवल, तो ये भी इंक्रीज होना शुरू करेंगे। उसके बाद जो पैथोलॉजिस्ट आई मीन हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, हम लोग उनको नहीं छोड़िएगा, उनके पास बायोप्सी जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमारा जो है गुजर सफर इसी बायोप्सी पर है। तो निडल बायोप्सी हम करते हैं, और निडल बायोप्सी पर हम जाके पता करेंगे कि फोकल सेगमेंटल है, क्रीसेंट्रिक है, क्या है। थोड़ी बहुत हेल्प हम भी कर देंगे कि ये कौन सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, हम आ जाते हैं अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम, what is this nephritic syndrome? This is resulting into the partial renal failure। ये partial renal failure हो गया, ये total renal failure हो गया। partial में ये दोनों आ गए, nephritic and nephrotic आ गए, total renal failure में acute and chronic आ गए। nephrotic हो गया, अब हम देखते हैं nephritic। So this is the renal syndrome which is resulting into the partial renal failure। This is name given because of collection of different signs and symptoms that occurs mainly because of the inflammation within the arteries, within the glomeruli। So inflammatory changes हैं within the glomeruli which are leading to the nephritic syndrome। क्या features हैं? Now the features they start with the oliguria। What is this oliguria? Decreased urine formation। हेमेचूरिया, what is this हेमेचूरिया? Blood in the urine। उसके बाद
एजोटीमिया. व्हाट इज दिस एजोटीमिया? एक बताइए तो सब सुने. हाँ. एंड व्हाट इज यूरेमिया? So how you will differentiate between uremia and azotemia? हाँ, उल्टा बता दिया. ठीक है, एजोटीमिया में फीचर्स आ रहे हैं, यूरेमिया में नहीं आ रहे हैं. अच्छा ठीक है, आप गूगल कर लें फिर मुझसे बात करें. ठीक है. ओलिगोयूरिया डिक्रीज्ड यूरिक फॉर्मेशन. हेमेचूरिया ब्लड अंदर यूरिन. एजोटीमिया इंक्रीज्ड यूरिया कैटेनिन बीयूएन जो है वो बढ़ा हुआ है. माइल्ड प्रोटीनयूरिया. प्रोटीनयूरिया पर मैं जितना ज्यादा फोकस कर रहा था वो चीज यहाँ पर आ गई. क्या है यहाँ पर? माइल्ड. और वहां पर हमने क्या वर्ड ऐड किया था? हेवी प्रोटीनयूरिया. और प्रोटीनयूरिया हुई है तो हाइपोअल्बुमिनीमिया भी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी. हाइपोअल्बुमिनीमिया कुछ ना कुछ तो होगी. और वही हाइपोअल्बुमिनीमिया क्या कराएगी? माइल्ड एडिमा भी करवाएगी. तो यहाँ पर अगर हम नेफ्राइटिक के फीचर्स देखें तो नेफ्राइटिक में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पफी फेस, असाइटस, पेडल एडिमा, फिटिंग एडिमा, वो वाले फीचर्स तो नहीं मिल सकते हैं. लेकिन फीचर्स मोर और लेस मिलेंगे सही. हमें मोर और लेस हमें फीचर्स मिलेंगे सही. कौन से वाले? ये जो फीचर्स हैं ये वहां पर भी मिलेंगे, लेकिन ये दे आर लेस प्रोनाउंस्ड फीचर्स, सो वी राइट देम एट द एंड इन द डेफिनेशन. तो नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक की जो दोनों की डेफिनेशन है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, और दोनों के फीचर्स सेपरेट हैं. यहाँ पर मेन फीचर्स क्या हैं? ओलिगोयूरिया, हेमेचूरिया, एजोटीमिया, हाइपरटेंशन, ये मेन फीचर्स हैं. ठीक है. हाइपरटेंशन भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं. तो अब ये फीचर्स हो क्यों रहे हैं? जिस तरह से हमने देखा डिटेल में पैथोजेनेसिस क्या है नेफ्रोटिक की, अब यहाँ इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं. अच्छा, माइल्ड हाइपरटेंशन लिखा है, तो माइल्ड हाइपरटेंशन भी यहाँ पर है. और दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द नेफ्राइटिक सिंड्रोम. कॉजेस क्या है यहाँ पर? मेनली ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन. दिस इज द मेन, एंड दीज मे बी बिकॉज ऑफ द infectious causes, some autoimmune or some vascular thrombotic diseases which may lead to the nephritic syndrome, and they are divided as far as the age is there. तो एज के हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है नेफ्राइटिक सिंड्रोम को. और वहां पर कैसे था? प्राइमरी और सेकेंडरी था. वहां पर क्या था? किसमें? नेफ्रोटिक में क्या था? हमने कॉजेस को प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेस में क्लासिफाई किया था. और यहाँ पर हम एज के हिसाब से चिल्ड्रन में कॉजेस डिफरेंट है, एडल्ट में कॉजेस डिफरेंट है. चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट्स में 10-12 इयर्स तक IgA nephropathy is on the top, post streptococcal glomerulonephritis, this is on the second. hemolytic uremic syndrome है, Notch Lawrence purpura है. तो ये 3-4 कॉजेस हो गए किसके? चिल्ड्रंस में. एडल्ट्स में हम देखते हैं तो गुड पेस्चर है, SLE है, रैपिडली प्रोग्रेसिव जो कि प्रीसेंट्रिक है, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है. तो कुछ सिस्टमिक डिजीज है, सिस्टमिक लीजन्स हैं जो कि गुड पेस्चर, इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस, और उस तरफ Notch Lawrence purpura है, hemolytic uremic syndrome है जो कि सिस्टमिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाते हैं. और कुछ प्राइमरी हैं जिस तरह से IgA है और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है. तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मिला के एज वाइज हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है कॉजेस को जो कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम करवाते हैं. अब हम देखते हैं क्या अहम चीज पैथोजेनेसिस. ये क्लिनिकल फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि ओलिगोयूरिया से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं. मेन फीचर यहाँ पर क्या है? देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स. तो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डिस्कस किया था. प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है? देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स. दे मे बी आइदर एंडोथेलियल सेल्स जो वेसल्स के अंदर एंडोथेलियल सेल्स हैं, या एपिथेलियल सेल्स हैं, या मेसेंजर सेल्स हैं. 3 तरह के सेल्स वहां पर हमें देखने को मिले थे विद इन ग्लोमेरुलस. तो एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो सकती है. एपिथेलियल सेल्स में अगेन देयर आर 2 टाइप्स, विस्ट्रल एंड पेराइटल एपिथेलियल सेल्स हैं, और मेसेंजर सेल्स हैं. इन सेल्स की प्रोलिफरेशन होनी है. तो ये यहाँ पर मेन फीचर है. नेफ्रोटिक में मेन फीचर कहां से इंसल्ट स्टार्ट हुई थी? GBM थिकनिंग केस. और यहाँ पर इंसल्ट स्टार्ट हो रही है कहां से? देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स accompanied by the inflammation. There is additionally inflammation is there.
Now this proliferation of the cells, if this proliferation is affecting the endothelial cells, तो endothelial cells क्या करेंगे, वेसल के ल्यूमेन को नैरो कर देंगे। अगर बाहर एपिथेलियल सेल्स को या मेसेंजियल सेल्स को अगर हम प्रोलिफरेशन पर लेकर आते हैं, इसको एपिथेलियल सेल्स को या मेसेंजियल सेल्स को, तो वो बाहर से क्या करेंगे, वेसल्स को कंप्रेस करेंगे, बाहर से प्रेशर क्रिएट करेंगे। बाहर क्योंकि हाइपरप्लेसिया हो गई है तो वो वेसल्स को कंप्रेस करेंगे, वेसल्स को कंप्रेस करेंगे, अल्टीमेटली नैरोइंग होगी। अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वेसल की नैरोइंग हो जाएगी। वेसल की नैरोइंग हो जाएगी तो ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर कम हो जाएगा, जीएफआर कम होगा तो ओलिगोयूरिया हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द ऑल फिनोमेना के प्रोलिफरेशन ऑफ सेल भी ल्यूमेन नैरो हुआ, जीएफआर कम हो गया। जीएफआर कम होने के बाद हमारा क्या हो गया, ओलिगोयूरिया हो गया। ओलिगोयूरिया के साथ साथ क्या होगा, ब्लड रिटेंशन, दैट इज फ्लूइड रिटेंशन, क्योंकि फ्लूइड नहीं फ्लूइड लॉस नहीं हो रहा, यूरिन फॉर्मेशन कम हो रही है। ये फ्लूइड रिटेंशन क्या करवाएगी, उसके साथ साथ फ्लूइड रिटेंशन के फीचर आएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होगा, एजोटीमिया भी हो जाएगा। एजोटीमिया रिटेंशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया केटिनिन हमारे, वो भी रिटेन हो जाएंगे क्योंकि जीएफआर ही कम है, ब्लड फ्लो ही कम है, तो फिल्ट्रेशन जो किडनी का मेन फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये एजोटीमिया को लीड करेंगे। हाइपरटेंशन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, ओलिगोयूरिया की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से और ज्यादा फ्लूइड रिटेन होगा, और ज्यादा फ्लूइड रिटेन होगा, तो पहले से ही फ्लूइड रिटेन हो रहा है, अब ये एडिशनली फ्लूइड रिटेन हो रहा है। रेनिन एंजियोटेंसिन का बेसिक जो रीजन होगा वो क्या होगा, जीएफआर कम होना होगा। ठीक है, जीएफआर कम है तो सेकेंडरी क्या होना शुरू होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो और ज्यादा फ्लूइड रिटेन करेगा। फ्लूइड ओवरलोड होगा तो पेशेंट जो है हाइपरटेंशन में जाएगा। So this is result of the both fluid retention and that is released from the ischemic kidneys because of the GFR, decreased GFR. Inflammation होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर inflammatory reaction जो कि हमने definition में बताया है कि एक proliferation हो रही है, दूसरा inflammation हो रहा है। ये inflammation क्या करेगा, capillary wall injury करवाएगा, vessel की capillary wall injury करवाएगा। vessel wall injury होगी तो यहाँ से red cell भी leak out होना शुरू हो जाएंगे, रेड सेल्स लीक आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा एक और फीचर आ जाएगा किसका, हेमेचूरिया का। और ये ग्रॉस हेमेचूरिया नहीं होगी। ग्रॉस हेमेचूरिया क्या होती है कि ब्लड में ग्रॉसली ब्लड आ रहा हो, ब्लड का कलर टोटली रेड हो जाए, तो उसको हम ग्रॉस हेमेचूरिया कहते हैं। यहाँ पर ये हेमेचूरिया यूरिन के कलर को माइक्रो हेमेचूरिया ही होगी एग्जैक्टली, और ये यूरिन के कलर को स्मोकी यूरिन बना देगी, स्मोकी कलर हो जाएगा। और यहाँ पर ये वेसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या दिखाई गई है, सेल्यूलर हाइपरप्लेसिया दिखाई है। ठीक है, नॉर्मल वेसल है, इसके अंदर जो है हाइपरप्लेसिया हो जाएगी, सेल्यूलर हाइपरप्लेसिया हो जाएगी, जो कि मेन यहाँ पर इंसल्टिंग एजेंट है इन नेफ्राइटिक सिंड्रोम, जहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। नेफ्रोटिक में हमने देखा कहानी कहां से स्टार्ट हो रही थी, जीवीएम थिकनिंग से। यहाँ पर प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जो है वो इंसल्ट शुरू करवाएंगे। जी सर, तो यहाँ पर एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन होना चाहिए ना, प्रोलिफरेशन इंक्रीज नंबर एंड सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी एंडोथेलियल सेल्स की भी, बाकी सेल्स की। ठीक है, एब्नॉर्मल लव्स जो है ना वो हमें ट्यूमर्स की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्यूमर वाली चीज नहीं होती है। हाँ, अब इस सेंस में अगर एब्नॉर्मल लव्स को लें आप कि नॉर्मल से तो ज्यादा ही हो रहे, तो एब्नॉर्मल तो है, तो एब्नॉर्मल तो है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि अगर हम कहेंगे पैथोलॉजी मतलब डिजीज, पैथोलॉजी वाले मतलब डिजीज, तो ये तो इस तरह से नहीं। हाँ, एब्नॉर्मल आप लफ्ज यूज कर सकते हैं, बट इट हैज लॉट्स ऑफ मीनिंग्स। तो ओलिगोयूरिया होगी। ओलिगोयूरिया हमें कैसे पता चलेगी, किसको हम ओलिगोयूरिया कहेंगे, यूरिन फॉर्मेशन कम हो रही है, लेकिन व्हाट इज डिक्रीज, नॉर्मल क्या है, डिक्रीज क्या है। तो लेस देन 400-500 ml पर डे 24 आवर यूरिन हम कलेक्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि यूरिन फॉर्मेशन कितनी हो रही है। देयर इज हाई लेवल ऑफ द यूरिया केटिनिन BUN। हेमेचूरिया हमने देखी है कि लीकेज ऑफ द आरबीसीज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन हुआ है, वेसल वॉल इंजरी हुई है, वेसल वॉल इंजरी की वजह से
माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होगी और ये यूरिन के कलर को चेंज करेगी। यूरिन विल बी स्मोकी कलर, स्मोकी ब्राउन कलर का यूरिन हो जाएगा यहाँ पर हेमेचूरिया में। माइल्ड हाइपरटेंशन क्यों हुआ है? रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, जीएफआर कम हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम हुआ और इसकी वजह से माइल्ड हाइपरटेंशन हो जाएगा। दिस इज नॉट द वेरी हाई मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। उसके साथ साथ एडिमा भी होगी। एडिमा क्यों होगी? देयर इज डैमेज टू द कैपिलरीज, जो कि कहां हमने देखा, यहाँ पर देयर इज डैमेज टू द कैपिलरीज और कैपिलरीज से डैमेज की वजह से यहाँ पर क्या लॉस हुआ है? आरबीसी, रेड सेल्स बाहर गए हैं। यहाँ पर वही डैमेज टू द कैपिलरीज क्या करवाएंगे? प्रोटीन लॉस करवाएंगे। ये प्रोटीन लॉस क्या कहेंगे हम इसको? प्रोटीन यूरिया। एंड दिस प्रोटीन यूरिया इज माइल्ड प्रोटीन यूरिया लीडिंग टू द माइल्ड एडिमा एज वेल। तो इसके माइल्ड प्रोटीन यूरिया के साथ साथ माइल्ड एडिमा भी आ जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोटीन लॉस है वो कितना है? इट इज लेस देन 2 ग्राम्स। नॉर्मली प्रोटीन होते हैं, कितने होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है। तो माइल्ड प्रोटीन यूरिया हो रही है, इट इज लेस देन 2 ग्राम्स पर डे। ये स्मोकी ब्राउन जो यूरिन है उसको दिखाया गया है, ग्रॉस हेमेचूरिया को दिखाया गया है। यहाँ पर ये फीचर हमें नहीं मिलता, ग्रॉस हेमेचूरिया नहीं है। हाँ, यूरिन का कलर अल्टर हो जाता है, ब्राउनिश स्मोकी ब्राउन कलर का यूरिन हो जाता है। तो ये फीचर हमें देखने को मिलता है। नॉन स्पेसिफिक फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। समटाइम्स पेशेंट में हेडेक, लंबर पेन, फ्रॉदी डार्क कलर का यूरिन भी हो सकता है। टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, और इसके कुछ इन्फेक्शियस कॉजेज भी थे, इस वजह से भी टेम्परेचर, वोमिटिंग, नोजिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ अगेन इन्फेक्शंस। ये सारे नॉन स्पेसिफिक फीचर भी हमें देखने को मिलते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। डायग्नोज कैसे करेंगे? यूरिन कैथेटराइज करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटलाइज करने के बाद 24 आवर यूरिन कलेक्ट करेंगे और यूरिन वॉल्यूम देखेंगे क्या है, प्रोटीन यूरिया देखेंगे कितनी हो रही है, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया जो है अगेन 24 आवर यूरिन के थ्रू ही हमें पता चल सकती है। हेमेचूरिया हम अगेन यूरिन डीआर करवाएंगे जिसमें हमें माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया मिलेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड मीडिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन और आखिर में बायोप्सी। तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाइपरसेल्युलर हैं, प्रोलिफरेटिव चेंजेस हैं, फ्लैम हैं और वहाँ पर हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल रहे हैं। ये बायोप्सी पर नजर आएंगे। इस तरह से हमारी फाइनल डायग्नोसिस हो जाएगी नेफ्राइटिक सिंड्रोम की। क्लिनिकली दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर कहानी का जो मेन फीचर है वो क्या है? प्रोटीन यूरिया के साथ, ठीक है। और वहाँ पर मेन फीचर क्या है? ओलिगोयूरिया के साथ आ रही है। तो यहाँ पर एडिशनली एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिडूरिया, प्रोटीन कॉस्ट मिलते हैं यूरिन में। और यहाँ पर नेफ्राइटिक में अगर हम देखें तो ओलिगोयूरिया, हेमेचूरिया, जीएफआर डिक्रीज हो रहे हैं, हाइपरटेंशन है, आरबीसी, प्रोटीन कॉस्ट हमें यूरिन में मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट लेक्चर पॉसिबली हम पाइलोनेफ्राइटिस पर करें या रीनल फेलियर पर कर लेंगे, क्योंकि हमने आज टेबल में क्लासिफिकेशन में देखा है कि पार्शियल और टोटल रीनल फेलियर एक्यूट एंड क्रॉनिक हो जाए। तो पहले तो मेरे प्लान में यही था कि नेक्स्ट लेक्चर हम पाइलो पर करेंगे, लेकिन रीनल फेलियर पहले कर लेते हैं। और क्योंकि एडिशनली लास्ट वीक में एक लेक्चर मुझे एक्स्ट्रा मिल गया था, तो क्योंकि रीनल फेलियर क्लिनिकल टॉपिक ज़्यादा है तो मैंने सोचा था उसको मे बी एंड में हम स्किप कर दें। आपकी समर वेकेशन से पहले किडनी को पूरा करना था। तो पाइलोनेफ्राइटिस इंपॉर्टेंट है, यूरोलिथासिस एक रहता है, रीनल ट्यूमर्स हैं। तो ये टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है किडनी के चैप्टर में। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आइदर रीनल फेलियर और रीनल फेलियर ही करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। और उसके बाद लास्ट में नहीं, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा उसको पाइलोनेफ्राइटिस